Welcome to Vet Fraternity. This is a YouTube channel that is going to provide you online course of DVM degree. For that, I welcome you all. This channel will help you grasp concept in an easy way. Since this is an introductory video, we will go through the definitions of all the branches that DVM degree includes. And we will see that in the form of which courses these branches are divided in this degree. We will stay brief in this video, but when the lectures of respective courses will be uploaded, there we will see these definitions in detail. So let's begin. The branches that are included in the DVM veterinary field are veterinary anatomy, veterinary histology, veterinary physiology, animal nutrition, livestock management, animal breeding and genetics, poultry production, microbiology, veterinary pathology, veterinary parasitology, veterinary pharmacology, veterinary medicine, heliogenology, surgery, lab and zoo management. The first one is veterinary anatomy. Anatomy is a branch of biology that deals with the structure and form of animals. It includes the study of shape, weight, color, texture, and positions of organs. We study all these when the animal is in the state of normality. तो इसका मतलब यह है कि एनाटमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि एक एनिमल जब वो सेहत और तंदुरुस्त होता है उस वक्त उसके अंदर उसके जितने ऑर्गन्स हैं, उसकी बोन्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स की शेप क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, यानी वो ऑर्गन सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, किस तरह के हैं, पोजीशन क्या है ऑर्गन की बॉडी के अंदर। फिर ये सारी चीज़ें जब हम एक एनिमल के अंदर नॉर्मल स्टेट में पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ कंक्लूड होता है वेटनरी एनाटमी के अंदर। The courses offered are veterinary anatomy 1, that will be caprine anatomy, veterinary anatomy 2, that will be comparative anatomy between equines, ruminants, canines, etc. So the next one is histology. Histology is the branch of anatomy that deals with the microscopic study of tissue. यानी ये एनाटमी की ही ब्रांच है, लेकिन इसमें हम टिश्यूज की स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। The courses offered are general veterinary histology, systemic veterinary histology and embryology. The next one is veterinary physiology. Veterinary physiology is the branch of biology that deals with the normal functions and mechanisms of the body. यानी ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम एक एनिमल जब वो ठीक ठाक होता है, उसको कोई डिजीज नहीं होती, तो उस एनिमल के अंदर जो भी फंक्शंस है, प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिज्म है, वो सारा कुछ हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एक फिनोमेना है ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये प्रोसेस रिस्पायरेशन का कैसे हो रहा है? फिर एनिमल ईट्स द फीड, वो फीड बॉडी के अंदर जाकर कैसे डाइजेस्ट होती है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, बॉडी को उससे एनर्जी, उससे ग्लूकोज कैसे मिलेगा, ये सारे प्रोसेसेस जो है नॉर्मल प्रोसेसेस बॉडी फंक्शन को जो हेल्दी रखते हैं वो कैसे होंगे, वो मैकेनिज्म्स हैं, वो सारा कुछ हम वेटनरी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। The courses offered are veterinary physiology 1, veterinary physiology 2. The next is animal nutrition. Animal nutrition is a study of composition and characteristics of material that consumed by the animals. How the material is metabolized in the digestive tract and the body cells of the monogastric animals and the ruminants. यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन उस फीड की जो कि एनिमल खाता है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी स्टडी का नाम है। और उसके बाद वो मटेरियल एक जानवर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और बॉडी सेल्स के अंदर जाकर कैसे मेटाबोलाइज होगा, और ये चीज़ें हम मोनोगैस्ट्रिक और रूमिनेंट एनिमल्स दोनों के अंदर पढ़ते हैं। तो दिस इज एनिमल न्यूट्रिशन। अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन को फोकस करें,
So nutrition means nourishment of the body properly. It is a supply of an adequate amount of nutrients for living, growth, reproduction, and performing all the bodily functions. It involves various chemical and physiological activities which transform food animal elements into the body elements. यानी कि अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन को फोकस करें तो इसका मतलब होता है कि बॉडी को ही नरिशमेंट होना प्रॉपर्ली। मतलब क्या है, जब हम न्यूट्रिशन में एक फीड की स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक एनिमल है, उसका कितना बॉडी वेट है, उसकी एज है, हम उस हिसाब से उसकी फीड रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। अब वो जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए उस उम्र के जानवर को, हम वो फीड उसको खिलाते हैं। उससे कम अगर देंगे तो एनिमल मेल न्यूट्रिशन में होगा। तो इसलिए न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो बॉडी की एडिक्वेट रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों के लिए वो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जिंदा रहने के लिए, लिविंग, उसकी ग्रोथ यानी बॉडी का साइज बढ़े, रिप्रोडक्शन, उसकी रिप्रोडक्शन हो, उसकी परफॉर्मिंग ऑल बॉडीली फंक्शन यानी जो बाकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शन हो रहे होते हैं, उन सब के लिए जो एनर्जी, जो ताकत, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो नरिशमेंट चाहिए, वो पूरी की पूरी जब प्रॉपर होगी तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। It involves various chemical and physiological activities transforming food elements into the body elements. इसका क्या मतलब है? यानी कि वो सारे प्रोसेसेस जो फूड एलिमेंट्स को बॉडी एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक जानवर है, वो खाना खाता है, उसने जो फीड है वो खाई। अब खाने के बाद वो फीड बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगी, फिर वो उससे एनर्जी कैसे मिलेगी, यानी एक फूड एलिमेंट बॉडी एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। आप एक जानवर को प्रोटीन फीड खिलाते हो, वो प्रोटीन बॉडी के अंदर जाके ब्रेक होके उसके मसल्स की प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है, उसके मसल्स डेवलप करवा रही है, यानी एक फूड एलिमेंट बॉडी एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। आपने एनिमल को कैल्शियम खिलाया है, वो कैल्शियम यूटिलाइज करके आपको मिल्क प्रोड्यूस करके दे रहा है, एक फूड एलिमेंट बॉडी एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज जिनसे ये सारा प्रोसेस होता है, उन प्रोसेसेस को भी हम एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं। द कोर्सेज ऑफर्ड आर प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, लाइवस्टॉक फीड रिसोर्सेज एंड फोरेज कंजर्वेशन, पोल्ट्री न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी। The next is livestock management. Livestock management involves farm animals management and supervising farm workers. Livestock management requires knowledge of animal science and animal husbandry as well as good business sense. यानी कि लाइवस्टॉक मैनेजमेंट जो है उसमें हम एक एनिमल, जो हमने एनिमल एक फार्म पे रखे हैं, उनको कैसे रखना है, उनकी हाउसिंग कैसे हो, सफाई सुथराई कैसे हो, हमने उनकी मिल्किंग करनी है, वो सारे प्रोसेसेस कैसे सारा मैनेज हो। तो एनिमल्स की मैनेजमेंट और साथ साथ जो आपने फार्म पे अब अपने वर्कर्स रखे हैं, उन वर्कर्स को भी सुपरवाइज करना पड़ता है। तो ये सारी सुपरविजन, ये सारी मैनेजमेंट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर आती है। इसमें आपको एनिमल साइंस यानी एनिमल की बॉडी के यूँ समझ लें कि फिजियोलॉजी, एनाटमी, ये सारा कुछ क्या है, फंक्शन क्या है। एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं रियरिंग और रेजिंग ऑफ द एनिमल्स फॉर लाइक मिल्क, मीट, अगर बर्ड्स है तो एग्स के लिए भी, इन सारी चीज़ों को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल साइंस, नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज गुड बिजनेस सेंस। वाई गुड बिजनेस सेंस? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बिजनेस के लिए एक बेसिस दे सकता है। डेयरी फार्मिंग, मीट प्रोडक्शन, जो रियरिंग, जो फैटनिंग के लिए एनिमल्स हम रखते हैं, उनको ईद पे फरबा करते हैं, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, ठीक है। सो लाइफ स्टॉक आपको एक पाथवे देती है फॉर द बिजनेस, गुड बिजनेस। तो आफ्टर स्टडिंग दीज कोर्सेज, दीज मैनेजमेंट्स, यू कैन डेवलप बिजनेस स्किल्स और आप अपना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। द कोर्सेज ऑफर्ड आर फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, बीफ एंड मटन प्रोडक्शन, एनिमल वेलफेयर एंड एथिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी।
The next is microbiology. It is a branch of science that deals with the study of microorganisms, those being unicellular, multicellular, or acellular. It includes virology, bacteriology, mycology, immunology, protistology and parasitology. यानी ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर यानी जैसे बैक्टीरिया है, मल्टी सेलुलर जैसे फंगस है, या ए सेलुलर जैसे हम वायरसेस को बॉर्डर लाइन ऑफ दी लिविंग एंड नॉन लिविंग रखते हैं। तो इस तरह के हम अ, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी की आगे फर्दर सब डिवीजन्स हैं। वायरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियोलॉजी जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, माइकोलॉजी फंगस हो गई, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम, प्रोटिस्टोलॉजी जो प्रोटिस्ट है, एंड पैरासाइटोलॉजी जिसमें हम प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स और एंटोमोलॉजी ये तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। So these all sum up in microbiology. The courses offered are general veterinary microbiology, veterinary immunology, veterinary bacteriology and mycology, veterinary virology. The next is veterinary pathology. Pathology means study of disease. Veterinary pathology is the study of functional and morphological alterations that develop in an animal as a result of injurious agents, nutritional deficiencies or inherited characteristics. यानी पैथोलॉजी का मतलब क्या है कि बीमारी जो डिजीज है उसकी स्टडी। अब वेटनरी पैथोलॉजी में क्या है कि जो फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल ऑल्ट्रेशंस हैं एनिमल की बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं, यानी एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर जो मॉर्फोलॉजी है उसमें इश्यूज आ जाती हैं, ठीक है। या साथ साथ उसके जो फंक्शंस हैं वो भी ऑल्टर होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी है। अब ये होती किस वजह से है? या वो इंजूरियस एजेंट्स की वजह से है, ठीक है, और या वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से यानी एनिमल कोई मैल न्यूट्रिटेड है, या वो इनहेरिटेड करैक्टर्स हैं यानी कि जेनेटिकली जो एक एंसेस्टर से अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही होती हैं, यानी जो कंजेनिटल डिजीजेज होती हैं। सो दिस ऑल सम अप्स इन दी पैथोलॉजी। The courses offered are general veterinary pathology, systemic veterinary pathology, veterinary clinical pathology, meat inspection and necropsy practice, poultry pathology. The next is veterinary parasitology. Veterinary parasitology is the study of animal parasites, especially relationship between parasites and host animals. यानी इसमें हम एनिमल पैरासाइट्स और उनके होस्ट यानी एनिमल्स एंड देयर पैरासाइट्स इसका रिलेशनशिप पर देखते हैं और पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल एंड ऑल। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। एक है प्रोटोजोलॉजी, ठीक है, जो प्रोटोजोआ है। फिर है एंटोमोलॉजी जिसमें हम टिक्स, फ्लीज वगैरह, मॉस्किटोज इन सबको पढ़ते हैं। और फिर है हेलमिंथोलॉजी जो वॉर्म्स की स्टडी है, नीमाटोडा, सिस्टोडा, ट्रीमाटोडा, ये सारा कुछ इसमें आता है। बाकी जिनको नहीं पता ये क्या है, नीमाटोड, सिस्टोड, ट्रीमाटोड, जब हम इस कोर्स के लेक्चर्स देखेंगे वहाँ पे वी विल गेट टू नो कि ये क्या क्या है। The courses offered are general veterinary parasitology and protozoology, veterinary helminthology, veterinary entomology and ecology. The next is veterinary pharmacology. Pharmacology is a science that deals with physical and chemical properties, actions, absorption and fate of the chemical substance that modify the biological function. यानी ये वो साइंस है जिसमें हम एक ड्रग है, एक सॉल्ट है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं वो देखते हैं। फिर जब बॉडी के अंदर वो हम केमिकल एडमिनिस्टर कर देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपनी टारगेट साइट पे जाके एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, और उसके बाद उसकी फेट क्या है, यानी वो मेटाबोलाइज होके एलिमिनेट कैसे होगा बॉडी से। तो ये सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं।
Veterinary pharmacology means study of drugs, their properties and actions in the animals of interest. It touches most areas of human and veterinary medicine and closely touches pharmaceuticals and toxicology. यानी अगर हम स्पेसिफाई करें वेटनरी फार्माकोलॉजी को तो यही सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हम पढ़ते हैं सिर्फ एनिमल्स में जिन पे हम काम कर रहे होते हैं या जिनके लिए हमें ड्रग्स चाहिए हैं या जिनके लिए ड्रग्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गई वेटनरी फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी के अंदर ह्यूमन और वेटनरी मेडिसिन भी आती है, वो सारी फार्मास्यूटिकल्स, लेकिन इनके साथ साथ टॉक्सिकोलॉजी भी है। यानी कि फार्माकोलॉजी में तो हम पढ़ रहे हैं ना, एक ड्रग है, उसकी यूजेज, सारा कुछ, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्मफुल केमिकल, तो वो भी फार्माकोलॉजी के अंदर ही आएगी। द कोर्सेज ऑफर्ड आर जनरल एंड सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, veterinary chemotherapy and toxicology. The next is veterinary medicine. Veterinary medicine deals with the study of diagnosis, treatment and prevention of the disease. यानी कि जब हमारे पास कोई एक डिजीज है या कोई एनिमल है, हम देखते हैं उसके कोई सिम्टम्स हैं, तो हम उसकी डिजीज डायग्नोज करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, फिर उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये सारा कुछ डिजीजेस के बारे में हम वेटनरी मेडिसिन के अंदर पढ़ते हैं। द कोर्सेज ऑफर्ड आर जनरल एंड सिस्टेमिक वेटनरी मेडिसिन, veterinary preventive medicine 1, veterinary preventive medicine 2, medicine clinic 1, 2, 3 and 4. Then comes theriogenology. Theriogenology is a branch of veterinary medicine that focuses on the reproductive system in the animals. यानी ये वो ब्रांच है वेटनरी मेडिसिन की जिसमें हम मेल फीमेल एनिमल्स के अंदर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी एनाटमी, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनकी रेगुलेशन क्या है, डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक लेवल पे कैसे होती है, यानी ये सारा कुछ उनकी सिस्टम की पैथोलॉजीज, फंक्शंस, ट्रीटमेंट्स, इश्यूज, ये सारा कुछ हम थीरियो के अंदर पढ़ेंगे। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हर बात हम थीरियोजेनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। द कोर्सेज ऑफर्ड आर veterinary reproductive physiology, reproductive biotechnology, obstetrics and genital diseases, theriogenology clinic 1, 2, 3 and 4. Next comes surgery. Surgery is a branch of medical science that brings about or attempts to bring about pathological condition or diseased state into the normal through the instrumental, mechanical or manual way. यानी ये वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम एक पैथोलॉजिकल स्टेट को इंस्ट्रूमेंटल, मैकेनिकल या मैनुअल वे के जरिए नॉर्मल स्टेट पे लाने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल हर वो वे है जिसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें। मैकेनिकल है जैसे आप जो क्रश होता है वो यूज करते हो, ठीक है। मैनुअल वे ये होता है जैसे आप बैंडेज करते हो, दैट्स द मैनुअल वे। सो किसी भी तरीके से आप जब पैथोलॉजिकल और डिजीज स्टेट को नॉर्मल में लाओगे तो दैट ऑल स्टडी विल बी इंक्लूडेड अंडर सर्जरी। द कोर्सेज ऑफर्ड आर small animal surgery, anesthesiology and intensive care, diagnostic imaging, surgery clinic 1, 2, 3, large animal surgery and shoe. Thank you.